Oh, Senu. Am I audible to you, Senu? Hello? Am I audible to you? Yes, ma'am, loud and clear. Okay. So we'll start. Today we're going to cover remote sensing and GIS. Okay. And what is your exam date? Have you heard about that? I'm 18th or 19th. 18 and 19. So we have time up to how many weeks are there? 1, 2, 3, 4, 5, I think 6. next week also. Yeah. 6. हाँ 6 classes हैं आज का मिला के. So what we are left with? See, today I'm going to complete this section, that is environmental modeling using GIS and remote sensing. Okay, tomorrow I'll complete this unit 5th. Then if possible, tomorrow I'll complete this unit 5th. And lastly, for unit 6, I'll need only 2 hours, not more than that of 2 hours. So we'll about to finish before the time. Okay. Is there any difficulty? So is my screen visible to you? Yes, ma'am. Hello? Yeah. Yes. So we'll start with the remote sensing and GIS. Last week I have told you related to the LCI, life cycle assessment, life cycle assessment, LCA. तो कुछ किया उसका assignment का? Is there anything? नहीं मैम, नहीं हो पाया, सॉरी. नहीं पर ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. कोई बात नहीं. तो आज हम आगे बढ़ते हैं एंड विल सी द रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस. व्हाट इज जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग? ये हम कई बार देखते हैं ना, गूगल मैप जब हम ऑन करते हैं, है ना, ऑनलाइन, तो ऐसी पिक्चर्स हमें देखने के लिए मिलती है. This is nothing but a remote. This is nothing but the outcomes we are getting from remote sensing and GIS. Okay. So first of all, we'll start with the remote sensing. What is a remote sensing? Remote sensing is a collection of information about an object without being in direct physical contact with the object. Okay. ये किसी ऑब्जेक्ट का डेटा लेना होता है, पर उससे कांटेक्ट नहीं करना है, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं करना है. जैसे कि हम कोई फोटो खींचते हैं, है ना, कोई एक ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, हम उसका बस फोटो क्लिक कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट के बारे में हम एंटायरली डेटा ले रहे हैं, बट उसे टच नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि हम कैमरे या फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर रहे, दूर से खड़े हैं होकर कैमरे से फोटो ले रहे हैं. सेम थिंग हैपेंस विद द रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस एज वेल. सैटेलाइट होती है ऊपर, यहाँ पे देखो पिक्चर में सैटेलाइट होती है, एंड इट विल गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अर्थ, okay, without any physical contact. So this is nothing but a remote sensing. The process of collecting information about the earth's surface and phenomena using sensor not in physical contact with the surface and the phenomena of interest. This is nothing but a remote sensing. अर्थ सरफेस से डेटा लेते हैं, जो भी आपका रेडिएशन हो, कैमरा सेंसिंग है, जो कुछ भी है, उस हिसाब से मॉडिफाइड गैजेट, सैटेलाइट्स, फुल्ली एडवांस सैटेलाइट्स आर देयर. सो दे आर यूजिंग ओन सैटेलाइट. गूगल का खुद का एक अपना सैटेलाइट है ना, तो वो गूगल मैप चलाता है, पूरा एंटायर अर्थ का वो अपने आप गूगल मैप बना देता है. दैट इज नथिंग बट वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस. सो दिस इज व्हाट remote sensing is. Now some of the remote sensor are, सिर्फ satellite is not only the remote sensing. Sensing मतलब sense कितना हो रहा है आपको remotely, without any physical contact, without direct physical contact. That is nothing but whatever sense we have taken, that is nothing but a remote sensing. Now the sensors, जैसे कि सबसे पहली सेंसर आती है हमारी बेसिक नेचुरल, दैट इज आई एंड ईयर. आई क्या करती है, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट हम सारा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, है ना, विथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी पर्सन और एनी सरफेस एनीथिंग, है ना. तो आई क्या हो गया, एक रिमोट सेंसर हो गया. सिमिलरली ईयर इज आल्सो वन ऑफ द अनदर रिमोट सेंसर. विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट इट कैन गैदर द इंफॉर्मेशन बाय लिसनिंग ओनली, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. सो दिस इज व्हाट वन ऑफ द अनदर रिमोट सेंसर. देन अनदर man-made remote sensor are like binocular.
ओके, एज पर द पिक्चर शोज। बायनोकुलर भी क्या करते हैं, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट से इट कैन गैदर द इंफॉर्मेशन एंड एज वेल एज आई हैव एक्सप्लेन द कैमरा। ओके, सो दीज आर द रिमोट सेंसिंग। Now the steps involved in the sensing. First you have to identify the source. Okay, source देखना है आपको कि किस ऑब्जेक्ट का आपको सपोज इंफॉर्मेशन लेनी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप स्पेस से इंडिया का आपको वो लेना है, क्या कहते हैं उसको, इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। नाउ नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन, whether there are clouds are there or any pollution are there, meteorological wind is too heavy, so this should be, this interaction of the with the sources or with the what we can say, that should be gathered first. Then target, specify, marking of the target is necessary, कि इंडिया का ही इंफॉर्मेशन लेंगे तो सबसे पहले इंडिया का मैप वहां पे होना चाहिए, टारगेट। बी स्पेसिफिक, आपको यहाँ वहां नहीं जाना है। देन सेंसर, आपके पास में कौन सा सेंसर है, सैटेलाइट है। रिसीविंग यूनिट एंड प्रोसेसिंग यूनिट। रिसीविंग यूनिट क्या होता है, उसमें सैटेलाइट में एक रिसीविंग डिवाइस होता है, वो इमेज गैदर करेगा, इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, और वो क्या छोटे छोटे टुकड़े में गैदर करता है। तो फर्स्ट यू हैव टू प्रोसेस इट। देन इंफॉर्मेशन सिस्टम, that all the process information should be given to the information system. It will inform, it will process the data, और फिर वो डिटेल में आपको समझाएगा। that is nothing but in form of the information, that is nothing but the information. These are the steps included in the remote sensing. Now see, this is how फर्स्ट सोर्स ए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सोर्स क्या क्या है, लाइट का, वहां सन है। फिर एटमॉस्फेयर में क्लाउड कितने हैं, टारगेट आपका कोई सिटी है, ठीक है। वापस उसका सेंसर क्या हुआ, आपका सैटेलाइट हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, वो रिसीविंग यूनिट ने प्रोसेस करके वापस प्रोसेसिंग यूनिट में गया, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम में उसको गैदर किया और इंफॉर्मेशन आपके डिस्प्ले में आ गई। सो दिस इज हाउ रिमोट सेंसिंग इज वर्क, स्टेप बाय स्टेप। ओके, आप देख सकते हैं, ठीक है। लाइट सोर्स इज इंपॉर्टेंट, आपका सन है, एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन क्या है, और उस हिसाब से लास्टली आपको आउटपुट ये मिलता है। देखो, टारगेट आपका ये था सिटी, और आउटपुट आपको ये मिल गया, है ना, थ्रू दिस सेवरल प्रोसेसेस। Now there are two types of the remote sensing based on to the source of energy. First is the active, next is the passive. ठीक है, एक्टिव में आपका कोई भी सन या फिर कोई भी डायरेक्ट सोर्स नहीं रहता है लाइट का, बट पैसिव में क्या होता है ना, आपका डायरेक्ट सोर्स है सन, ठीक है। सन से आपको जितना भी अर्थ का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इन शॉर्ट वहां पे लाइट एनर्जी बहुत इन्फ्लुएंस करती है, दैट्स व्हाई इट्स अ पैसिव। थ्रू लाइट यू आर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। एक्टिव में ऐसा नहीं है, एक्टिव में विदाउट एनी हेल्प ऑफ द सन यू कैन गैदर द डेटा, दैट इज नथिंग बट एक्टिव। एंड जनरली एक्टिव remote sensing happens during the day night and passive happens during the day. Okay, so बेस्ड ऑन टू द सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे भी देखो पैसिव में लाइट आएगा, फिर उस हिसाब से टारगेट का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर करने का रिमोट सेंसर का वो होगा, है ना, इट रिफ्लेक्ट्स, दैट इज नथिंग बट अ पैसिव। और इमिशन भी पैसिव होता है, और यहाँ पे एक्टिव में डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है ना, सैटेलाइट का और जो भी टारगेट आपका है उससे। नाउ द टाइप्स देखो, पैसिव सेंसर के लैंडसैट है, एस्टर है, क्विकबार्ड है, आइकॉन्स, ये सारे सॉफ्टवेयर अभी अवेलेबल है। एक्टिव सेंसर में लीडार है, राडार है ना। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव सेंसर। Now the what is passive sensing, we'll see. Sun provide a very convenient source of energy from a remote sense for remote sensing. Okay, that's a global truth. Now next, sun's energy is either reflect or absorb and then re-emit. This is the most important thing to be considered in a what we can say remote sensing, that suns either reflect or absorb and then re-emit. सन से जितने भी आपके वेवलेंथ आ रहे हैं वो एक तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे आपके सैटेलाइट की तरफ, या तो फिर एब्सॉर्ब हो जाएंगे टुवर्ड्स द अर्थ, और फिर उसके हिसाब से रिमिट करके कैप्चरिंग द डेटा। Remote sensing system which measure the energy that is naturally available are called the passive sensors. Okay, remote, अगर ऐसी कोई सिस्टम है जो एनर्जी को आपको नेचुरली अवेलेबल है उससे जो भी डेटा बना रही है, दैट इज नथिंग बट अ पैसिव सेंसर।
Passive sensor are only be used to detect the energy when naturally occurring energy is available. Okay, वो तभी काम करते हैं जब आपकी naturally occurring energy है, जैसे कि daytime. Okay, like I said. Now active sensing. What is active sensing? The sensor emit radiation which is directed toward the target to investigate. डायरेक्टली जो भी आपकी सैटेलाइट है वही रेडिएशन इमिट करेगी टारगेट की तरफ, है ना, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, है ना, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी सोर्स की, किसी एनर्जी सोर्स की जरूरत नहीं है ना, वो अपनी रेडिएशन फेंकेगी थ्रू सैटेलाइट और एनीथिंग एल्स, एंड देन इट विल गैदर द व्हाट वी कैन से इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टारगेट. Binocular is the example of passive sensing and camera is the example of active sensing. कैमरे के पास में खुद का फ्लैश होता है, रात में भी वो ले सकता है फोटोग्राफ्स, है ना. बाइनोकुलर के लिए अगर लाइट नहीं है तो रात में उसका कुछ काम नहीं है ना. तो दिस इज व्हाट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैसिव एंड एक्टिव. सो coming towards next, the radiation reflect from the target is detected and measured by the sensor. Now, what are the advantages? The ability to obtain measurement any time, regardless of the time of the day or season. इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है एक्टिव का कि ना डे टाइम देखना है ना ही सीजन देखना है. इट कैन गैदर द इंफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ इन एनी कंडीशन, एनी एटमॉस्फेरिक कंडीशन. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. And that's why most of the sensors are based onto the active sensing only. It require a generation of fairly large amount of energy to educate, emulate the targets. Yes, it require lots of energy क्योंकि खुद ही radiation emit कर रहा है, खुद ही capture कर रहा है. तो इसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बहुत ज्यादा लगेगी. क्वांटिटी वाइज इट रिक्वायर्स एम्पल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी to be operate. Okay, so like actual example active remote sensing based on the electromagnetic spectrum. First is the optical remote sensing, thermal and microwave remote sensing. We'll see one by one. First we'll see optical. What is the optical remote sensing? In optical remote sensing, the sensors can only record the radiation is visible bands. Okay, जितने भी हमारे विजिबल बैंड्स है उसी के थ्रू जितना भी इंफॉर्मेशन गैदर हो रहा है, जितने भी रिकॉर्डिंग हो रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल. नियर द इंफ्रारेड एंड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड बैंड्स. इंफ्रारेड के अराउंड ही ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग होता है. डिपेंडिंग ऑन टू द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल ब्रांड्स यूज, ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, दैट इज multispectral imaging system and superspectral imaging system. Okay, these are so detailed, but आप ध्यान में रखिए क्या क्या टाइप्स है. नेक्स्ट है थर्मल रिमोट सेंसिंग. थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद अ वेवलेंथ बिटवीन 3.5 to 20 माइक्रोमीटर. ये जो ऑप्टिकल हुआ वो इंफ्रारेड में हुआ. थर्मल की वेवलेंथ स्पेसिफाइड है, दैट इज 3.5 and 20 नैनोमीटर. नाउअडेज मल्टी एंड हाइड्रोस्पेक्ट्रल थर्मल सेंसर आर यूज्ड. ओके, मल्टी में ऐसा होता है ना, मल्टीपल नंबर ऑफ क्या कहते हैं हम लोग, उसमें हम सेटिंग कर सकते हैं कि ये वाली वेवलेंथ की हमें बस इमेजेस चाहिए, तो आप उसमें टाइप कर सकते हैं. हाइपर स्पेक्ट्रल में क्या होता है, ऑलमोस्ट इट गैदर्स ऑल ऑफ द वेवलेंथ. दैट्स द डिफरेंस. नाउ द माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, that is 1 mm to 1 meter electromagnetic spectrum. It can gather the information. It's a huge large scale. 1 mm से लेके 1 मीटर बहुत बड़ी large scale है. Microwave sensing encompasses both active and passive forms of the remote sensing as compared to optic and thermal. थर्मल में ऑब्वियसली सन लगेगा और जो ऑप्टिकल है उसमें भी सन लगेगा ही लगेगा, है ना. इंफ्रारेड तभी रेज आएगी आपके पास में रिफ्लेक्ट या इमिट होके. So longer wavelength microwave radiation can penetrate through the cloud cover, has dust and all the, but the heavier. That's why it can be used for in a active.
एक्टिव रिमोट सेंसिंग में ज्यादा से ज्यादा माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग ही यूज होती है, यही ऑपरेशन है उसका। Now the platforms. Platforms are based on ground based, airborne, space borne. प्लेटफॉर्म अलग अलग होते हैं। ग्राउंड बेस मतलब जमीन वाला, ठीक है। देन आपका एयरबॉर्न जो थोड़ा हाई एल्टीट्यूड में जाता है, स्पेस बॉर्न में आपका आता है सैटेलाइट। सेंसिंग फ्रॉम 1 मीटर टू 36 किलोमीटर हाइट। अलग अलग आपके क्या है सेंसिंग के हाइट से। आप कहाँ आपके ग्राउंड से, दैट इज डिफरेंस। ओके, सो या just give me a 5 minute break. I'll coming back to you. Actually, I'm getting discharged with my mobile and I want to get my charger. Okay, बस 1 मिनट 2 मिनट में ही। Okay. ओके। Yes. So where we are, yes, platforms. ओके, तो प्लेटफॉर्म अगर आप देखो तो 1 मीटर से लेकर सेंसिंग आपकी 1 मीटर से लेकर तो ग्राउंड सरफेस पे आपकी सैटेलाइट जो है वो 3600 किलोमीटर तक ऊपर रहती है ना। 36,000 किलोमीटर तक ऊपर रहती है आपकी सैटेलाइट। बट प्लेटफॉर्म्स आपके ग्राउंड बेस भी रह सकते हैं कि ग्राउंड के ऊपर हमने कुछ कैमरा इंस्टॉल किया या जो भी समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ग्राउंड बेस रह सकते हैं, एयरबॉर्न हवा में जैसे कोई एरोप्लेन है समथिंग लाइक दैट, एंड स्पेस बॉर्न जो आपकी सैटेलाइट है, ठीक है। एयरबॉर्न में आपका लो एल्टीट्यूड और हाई एल्टीट्यूड रहता है। लो एल्टीट्यूड में जनरली हेलीकॉप्टर्स और हाई एल्टीट्यूड में जनरली प्लेन्स रहते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। जो आपका हेलीकॉप्टर या फिर आपके जो फ्लाइट्स रहते हैं है ना, तो वहां से कैसी इंफॉर्मेशन आपको गैदर हो सकती है, डायरेक्ट कैमरा वाइज इंफॉर्मेशन आती है ना, एरियल कैमरा के जिसे कहते हैं। फिर आपका मल्टी स्पेक्ट्रल सैटेलाइट, ये इस तरह की इमेज आती है, उसमें बहुत सारे वेवलेंथ वो कैप्चर करता है। देन रडार सैटेलाइट में काफी क्लियर इमेज आती है ना, कि हाँ एक्चुअल में है कैसा वो सरफेस, उसमें कितने कर्व है, कितने क्या कहते हैं कैसी क्या कहते हैं उसको अपन क्या कहते हैं टेरेस्ट्रियल कैसा है उसका, कहाँ लो लाइन है, कहाँ हाई है, कहाँ वाटर है, बाउंड्री लाइन क्या है वाटर की, एग्जैक्टली इमेज मिलती है रडार सैटेलाइट में। और फिर हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर में आपको मल्टीपल लेयर्स मिलेंगी,
एक ही इमेज के मल्टीपल लेयर्स मिलेंगे कि आप हर एक को सेपरेट कर सकते हो। पानी अलग हो गया, लैंड अलग हो गया, वेजिटेशन अलग हो गया, मतलब वहां पे नंबर ऑफ कलर्स, आप कलर्स के हिसाब से भी आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिशियल है हाइपर सेंसर का। ओके, then application of remote sensing, there are various application of remote sensing in urbanization, transportation में तो देखते ही हम, अपडेटिंग रूट मैप्स, asphalt कंडीशन, वे वेटलैंड डिक्लिनेशन, ये सब चीजें बहुत जरूरी है रिमोट सेंसिंग में। गूगल मैप तो इतना जरूरी है, कोई भी नए शहर में जाओ और गूगल मैप तो चाहिए ही चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। एग्रीकल्चर में भी क्रॉप हेल्थ एनालिसिस, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, कंप्लायंस मैपिंग, यील्ड इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर में भी जरूरी है ना। देन नेचुरल रिसोर्स मॉनिटरिंग, कितना आपका देखिए आप यहाँ पे इमेज में देखिए आप, 1973 में ये जो रिवर है ये दिख ही नहीं रही थी, है ना। देन कहाँ कहाँ कैसे कैसे डेवलप करके इस रिवर को और भी ज्यादा मॉडिफाई कर दिया गया। नेशनल सिक्योरिटी, रिमोट सेंसिंग का सबसे ज्यादा एडवांटेजेस अगर है तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी में लगता है ना। उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, होमलैंड सिक्योरिटी हो गया, नेविगेशन पॉलिसी एंड ऑल ऑफ द स्टफ्स आर देयर। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना। जियो जियोग्राफिकल नाम ही बता रहा है कि पूरा अर्थ का जो भी जियोग्राफी है उसका इंफॉर्मेशन जो बनाने वाली सिस्टम है, दैट इज नथिंग बट अ जीआईएस। ओके, जियो अलग है, ग्राफिकल ग्राफ्स बना के दे रहे हैं ना। जियो आपकी पूरी अर्थ का जो भी आप कहते हैं उसको जियो कहेंगे, ग्राफिकली इंफॉर्मेशन दे रहा है, कहाँ पे कंटूर मैप के हिसाब से इंफॉर्मेशन देता है ना। इंफॉर्मेशन सिस्टम है एंटायर, अपने आप में एक ये पूरा सिस्टम है। GIS is a computer-based information system. Yes, of course, it need a computer, a system of capturing, storing, checking, integrating, manipulating, analysis, and displaying the data which are specially referenced to the Earth. This is the most important thing. Geo का ही मतलब आपका अर्थ आ गया है ना। तो जो भी GIS अगर जहाँ पे भी हम लोग सुनते हैं तो वो अर्थ से ही रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ, ये हम मानते हैं कि उसकी बाउंड्री आपकी लिमिटेड हो जाएगी, जितनी भी आपकी बाउंड्रीज है वो क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इट कुड बी लिमिटेड अप टू द continent country, it could be limited up to the city or something like that only, but it is information related to earth only. Now what are the things it can be done? First of all, it can capture, पूरा की पूरा एरिया कैप्चर करेगा, उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करेगा, फिर वेरीफाई करेगा प्रीवियस, रिसेंटली, उस हिसाब से इंटीग्रेट करेगा और मैनिपुलेट करके एनालिसिस करके फिर इट विल गोइंग टू डिस्प्ले द व्हाटएवर यू विल गोइंग टू रिक्वायर। ओके, दैट इज नथिंग बट अ जीआईएस। what GIS does, first of all, mapping and cartography, then query, select, distance, buffer, overlay, clip, merge, raster analysis and 3D analysis. आजकल हम मैप में देख रहे हैं तो 3D एनालिसिस भी होता है ना। 3D आप मैप देख सकते हैं, गूगल में भी डालेंगे तो। और गूगल अगर आप यूज कर रहे हो तो अर्थ अर्थ गूगल या गूगल अर्थ समथिंग सॉफ्टवेयर आता है, उसमें भी आप जीआईएस का हेल्प ले सकते हो। Now, technique using GIS, relating info forms from different sources. Okay, अलग-अलग sources से information ले रही है, data capture हो रहा है, data को integrate हो रहा है, then projection and registration, data structure and data modeling. जो भी आपका डेटा है उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, रजिस्टर किया जा रहा है, एक प्रॉपर डेटा का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट मॉडलिंग कैन बी हैपन। सो दीज आर द टेक्निक्स ऑफ GIS. Now we'll see one by one advantages of GIS. It can cope up with the large amount of data. See, हाँ, first of all हम लोग पहले advantages देख लेंगे. It can cope up with a large amount of data. Yes, you can add multiple amount of data. बस आपका hardware अच्छा मजबूत होना चाहिए. No matter how much data you are processing, GIS is capable to do huge amount of मतलब आपकी जो रैम है अगर लैपटॉप की 36 GB है तो GIS ऑलमोस्ट
मेरे हिसाब से अभी 236 या समथिंग लाइक दैट जीबी पे काम करता है, इतना एडवांस जीआईएस हो चुका है। कैन कवर अ लार्ज स्टडी एरिया, होल वर्ल्ड इज इफ नेसेसरी, पूरा की पूरा अर्थ का स्टडी करता है ना। कैन कोप अप विद अनलिमिटेड एंड फ्रीक्वेंट एडिट्स एंड चेंजेस। अनलिमिटेड उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, फ्रीक्वेंट भी कर सकते हैं चेंजेस, मोर रॉबस्ट एंड रेजिस्टेंस टू डैमेज, ज्यादा डैमेज नहीं होता, स्ट्रॉन्ग है ये सॉफ्टवेयर एज कंपेयर टू एनी अदर, फास्टर एंड मोर इफिशिएंट, यस, रिक्वायर लेस पर्सन टाइम एंड मनी, मनी बहुत कम लगता है और टाइम भी आपको बहुत ज्यादा बचता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ जीआईएस। नाउ आर यू गेटिंग व्हाट इज रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस? देखो, रिमोट सेंसिंग इज nothing but capturing a data with the help of photographs, with the help of Google Map or something like that. It cannot integrate, it cannot manipulate, it cannot analyze. This is the major, what we can say, difference between remote sensing and GIS. Okay, that's why अभी remote sensing वहीं पर होती है जहां पे जरूरत है ना। मतलब फोटो खींच रहे हैं कैमरा से, समथिंग लाइक दैट ओनली। पर ज्यादा से ज्यादा भी जीआईएस ही चलता है। रिमोट सेंसिंग इज क्या कहेंगे, काफी ज्यादा कन्वेंशनल टेक्निक हो गई है अभी। नाउ एडवांसली जीआईएस इज more useful for gathering, capturing, analyzing, interpreting the data. This is the biggest difference between GIS and remote sensing. Any difficulty up till now? कोई difficulty है? आप अकेले हो सेनो आज? नहीं नहीं मैम, एक्चुअली मैम थोड़ा रिलेवेंस इसका जानना था। हाँ। दिस एक्टिविटी इज बीन डन हमारे एनवायरनमेंट के साथ, जस्ट टू मेक केस स्टडीज या कुछ सर्वेस के लिए, या फॉर एनी अदर थिंग्स आल्सो वी यूज दिस? Yes, I am coming with that topic only कि application क्या क्या है remote sensing और GIS की, ठीक है। Yeah. I am coming to that only. तो GIS के टोटल एप्लीकेशन देखो, रिमोट सेंसिंग और GIS के तो 15 है, जिसमें मैक्सिममली रिमोट सेंसिंग अब काफी आउटडेटेड हो गए, कोई यूज नहीं करता है अगर आप कंपनी वाइज देखो तो। हाँ, थोड़ा मिलिट्री वगैरह यूज करती है फोटोग्राफ्स के लिए, ड्रोन वगैरह से या फिर हेलीकॉप्टर से, बट GIS ही ज्यादा से ज्यादा जगह पे GIS ही चलता है, नथिंग मोर देन द GIS ओनली। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। और हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन क्या क्या है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में, दोनों के वन बाय वन। So there are 15 application of remote sensing and GIS in environmental management. Okay. Remote sensing मैंने बताया, it's a science of obtaining Earth's surface using high flying satellite and aircraft. और GIS उसका GIS उससे थोड़ा एडवांस है, वो जनरली सैटेलाइट से ही होता है और पूरे पूरे अर्थ का कर सकता है हैंडल डेटा टू मच एज कंपेयर टू रिमोट सेंसिंग। Okay, first we'll see analyze and management agriculture and forest. ठीक है, remote sensor and GIS are very powerful tool for monitoring forest area in the environment. नहीं तो गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि कितना फॉरेस्ट का एरिया डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, है ना, कितना एग्रीकल्चर फॉरेस्ट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द एग्रीकल्चर, ये कैसे पता चलेगा? सो विद द हेल्प ऑफ जीआईएस, वो खुद इंडिविजुअल जाके फोटोग्राफ्स तो नहीं कलेक्ट कर सकते ना। दैट्स व्हाई जब भी आपका कोई एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पोस्ट निकलती है तो जनरली वहां पे जीआईएस कंपलसरी होता है ना। आप जाओ वहां पे, आइदर यू कैन टेक अ रिमोट, आइदर यू कैन यूज अ रिमोट सेंसिंग और जीआईएस। ओके, और आजकल रिमोट सेंसर जनरली ड्रोन वगैरह से ही होता है, जीआईएस जनरली यूज करते हैं क्योंकि काफी इजी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, गूगल अर्थ से आप कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट ओनली। इवन यू कैन काउंट द नंबर ऑफ ट्रीज विद द हेल्प ऑफ जीआईएस, कि आपके फॉरेस्ट में कितने ट्रीज है वो भी आप काउंट कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द स्पीसीज ऑफ अवेलेबल इन योर फॉरेस्ट, सो दैट कैन बी analyzed with the help of GIS as compared to the remote sensing. Remote sensing में एक फोटो आ जाएगी, that's it. Okay, so this is the first example, first application, sorry, of remote sensing and GIS. Next is the management of the water resources. Yes, water resources management entails planning, developing
and managing the optimum use of water resources. Yes, first it need planning, developing and managing. ओके कि कितना आपका वाटर रिसोर्सेज है, कैसे उसको यूज करना है. द गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर हैव पुट अप द वेरियस मेजर टू प्रोटेक्ट द वाटर बॉडी इन इंटरनेशनली. अब जैसे कि कोई डैम बन रहा है ना, तो डैम बनेगा तो इतना इतना एरिया उसमें ऑक्यूपाई हो जाएगा. वो अगर उससे ओवरफ्लो हो रहा है तो वो कितना जाएगा, वो जो पानी का हम रिसोर्स बना रहे हैं एज अ डैम, तो वो कितना पानी हमें पर ईयर प्रोवाइड कर सकता है ना. और वो जो आपके जितने भी उसका जो गोल है कि थ्रू आउट द ईयर वो इतने इतने लोगों को, इतने इतने सपोज 1 लाख पीपल, 10 लाख पीपल को पानी देना चाहिए, है ना. तो इतना वो दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है. सो हाउ यू कैन do this with the help of remote sensing and GIS only. Okay, you can monitor it after establishing of that dam as well, है ना. So same thing, you can monitor the activity around the water bodies and lots of the stuff you can monitor. You don't need to go to the site. घर बैठे या in the office, you can monitor all of the water bodies present onto the earth with the help of GIS as well as remote sensing. So this is the second application. Next, coming towards the third application, that is the air and water quality. See, water and air quality are the most fundamental things in the environment. What could be an environment without these two? The safe of the both water and air needs to be maintained all the time. Remote sensing technique manage the air and water quality in the environment by detecting cause of their pollution and providing information about their quality maintaining to the public. See, कोई रिवर है ना. अब गवर्नमेंट ने रूल तो ला दिए कि आपका जो भी डिस्पोजल का जो अमाउंट है पानी का, वो कितना रहना चाहिए. सपोज सॉरी, जो भी आपकी नेचुरल वाटर बॉडीज है उसमें जितना भी आपका कंपनी का वेस्ट वाटर ट्रीटेड आप जो डिस्पोज कर रहे हैं उसकी परमिसिबल लिमिट सच एंड सच होनी चाहिए, सो दैट आपका पानी जो है ट्रांसपेरेंट होकर ही उसमें रिवर में जाएगा. बट टेक्सटाइल इंडस्ट्री या समथिंग लाइक दैट हो गया, तो उसका एक पॉइंट ऑफ सोर्स होता है डिस्पोजल का, वहीं वो डिस्पोज करती है. और जनरली गवर्नमेंट साइट पे जाके कम, और GIS वगैरह रिमोट सेंसिंग से हो गया, जैसे भी वो मॉनिटर करती है कि वहां रिवर की क्वालिटी कितनी पुअर है एट द पॉइंट ऑफ सोर्स, है ना, एट द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर कैसी है. सो इट कैन इजीली आइडेंटिफाई. सेम थिंग, आपका कोई फैक्ट्री है जहां पे बहुत ज्यादा एयर इमिशंस हो रहे हैं, चिमनी है, स्टैक है, समथिंग लाइक दैट, तो आपके GIS से ही पता चल जाएगा कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है ना, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस. अगर बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, दिल्ली में कैसे पता चलता है कि खेत जलाने से एयर क्वालिटी नहीं हुई है खराब, बल्कि दिल्ली के लोगों ने खराब की है क्वालिटी, कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ GIS ओनली. सो उसके हिसाब से प्रॉपर टेक्निक निकलती है उसे ठीक करने के लिए. सो दीज आर द थिंग्स टू बी एनालाइज. ओके, analyze Hello, and ma'am. with the help of remote. Yes. Hello. It Yes, will be yes. control of the MPCB, na? The Maharashtra Pollution Control Board. हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही ये सब देखेगा आपका, है ना. अगर आपको थर्ड पार्टी ऑडिटिंग है या समथिंग लाइक दैट है, तो वो भी आपके देखते हैं. अभी जैसे बुलेट ट्रेन बन रही है ना, तो जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो प्राइमरी कंपनी हो गई, और उसके ऊपर फिर हो गया ऑडिटिंग कंपनी, और NHRCL ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है सभी को, तो जरूरी नहीं है NHRCL ही मॉनिटर करेगी, है ना. तो वो जो ऑडिटिंग कंपनी है वो भी मॉनिटर करती है, बट विद द हेल्प ऑफ GIS इट कैन बी इजीली मॉनिटर. फिर हाँ, आप देख के ये पता कर सकते हैं, अरे यहाँ तो पोल्यूशन ज्यादा है, चलो एयर का सैंपल ले लो. पानी में बहुत ज्यादा गंदगी है, चलो पानी का सैंपल ले लो, फिर उसका लैब टेस्ट कर सकते हैं. बट इट कैन बी बेसिक और प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, यू कैन से लाइक दैट. ओके, so one of the application. Next, coming toward the next application, that is the management of the infrastructure. Yes, this is the most important thing. अभी तो इतना जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप बना रहे हो तो GIS उसका करना, GIS एक्सपर्ट होना वहां पर बहुत जरूरी है. कोई बहुत अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे कि बुलेट ट्रेन का भी मैंने एग्जांपल लिया, सेम थिंग अगर आप कोई रेलवे ट्रैक या समथिंग लाइक दैट बना रहे हो, कोई क्या कहते हैं नेशनल हाईवे बन रहा है, तो वहां तो आपका GIS चाहिए ही चाहिए. बिफोर गोइंग
टूवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन कैसी थी जगह, और फिर आपने कंस्ट्रक्शन के ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कितना एक्सप्लॉइट कर लिया लैंड को, और उसके बाद में फिर कितना आपने रिहेबिलिटेशन किया. सो दिस 3 फोटोग्राफ शुड बी देयर, okay, while constructing any infrastructure. So how you can record it, how you can analyze this by using only GIS and remote sensing. तभी हो सकता है कि पहले जगह कैसी थी, इनिशियली जीरो टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, फिर आपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कितनी एक्सप्लॉइट की. कंस्ट्रक्शन करते समय ऐसा नहीं होता है ना कि रेलवे ट्रैक अगर हम लोग बना रहे हैं तो सिर्फ उतनी बस 6 मीटर का ही 6 मीटर तक ही हम लैंड को एक्सप्लॉइट करेंगे. नहीं, वो 6 से ज्यादा एक्सप्लॉइट होती है, 6 से 12 मीटर तक भी एक्सप्लॉइट होती है, समटाइम्स 24 मीटर. अगर कोई एक पॉइंट ऑफ आपका क्या कहेंगे सेटलमेंट है, वहां पे लेबर कैम्प है, समथिंग लाइक दैट है, तो वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होती है. फिर उसके बाद में आपका कंस्ट्रक्शन ओवर हो गया, यू आर अचीविंग योर फाइनल पीरियड ऑफ द टाइम, देन यू हैव टू रिहेबिलिटेट दैट. गवर्नमेंट रूल इज दैट आफ्टर कंस्ट्रक्शन यू हैव टू रिहेबिलिटेट द साइट एज वेल. फिर वापस उसको रिहेबिलिटेट करना है तो ट्री कितने काटे आपने, क्या किया, फिर वापस प्लांटेशन किया ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन या नहीं, या फिर जब आप छोड़ के जा रहे हो तो आपने प्लांटेशन किया है या नहीं. इट्स समथिंग यू हैव टू डू फॉर द सॉइल एज वेल. सो ये कैसे मॉनिटर होगा? विद द हेल्प ऑफ GIS and remote sensing. Okay, this is the one another application. Then next is the management of the natural resources. फिर उसमें कोई भी आप नेचुरल रिसोर्स ले लो, लाइक ऑयल, कोल, वाटर, फॉरेस्ट, नेचुरल गैस एंड व्हाट नॉट. हाउ इट कैन बी मैनेज, कितना खर्च कर रहे हैं, कितना, जैसे फॉरेस्ट का लेट्स टेक एन एग्जांपल, कितना बड़ा था, फिर कितना डिफॉरेस्टेशन हो गया, फिर उसके बीच में कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अभी जैसे एक कौन सा हाईवे बना है, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, नागपुर जबलपुर वाला हाईवे फ्रॉम महाराष्ट्र टू MP. ओके, वहां पे पेंच टाइगर फॉरेस्ट है ना, उसे रिजर्व करना है. और वो हाईवे उस फॉरेस्ट के बीचों बीच से जा रहा है ना. तो अगर आप वो हाईवे ग्राउंड पे बनाते हैं तो आपका ऑब्वियसली वो फॉरेस्ट 2 हिस्से में बट जाएगा. सो व्हाट कैन बी, है ना, आप ये सब इंफॉर्मेशन कैसे ले रहे हो? GIS के हेल्प से. अगर आप फॉरेस्ट को स्किप करके हाईवे बनाते हो तो आपका रूट बहुत लंबा हो जाएगा, बट आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बचाना है, टाइम भी बचाना है, ट्रैवलिंग का, एवरीथिंग यू हैव टू डू फॉर द मैनकाइंड. सो व्हाट इज द ऑप्शन? यू हैव टू गो इन बिटवीन द फॉरेस्ट. सो व्हाट विल GIS से कि अगर चलो आपका रास्ता ऐसा है ना, तो यू कैन लिफ्ट अप यूर हाईवे. तो वहां पे ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से जो रोड है वो 25 to 30 शायद 20 किलोमीटर से लेके तो 25 किलोमीटर एंड मोर देन दैट ऑफ समवेयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो वो पूरा की पूरा फ्लाईओवर बना हुआ है. तो नीचे से हैबिटेट को आना जाने के लिए या जो भी उनका नेचुरल रूटीन है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ मूविंग व्हीकल्स, क्योंकि व्हीकल्स तो ऊपर से जा रही है, नीचे तो फॉरेस्ट कंटिन्यू है और काफी हाई अप लिफ्ट अप किया गया है. सेम थिंग आप यहाँ पे जाते हैं श्रीनगर साइड, जम्मू श्रीनगर साइड है ना, वहां पे भी हैबिटेट को बिना डिस्टर्ब किए अभी ऐसे डेवलपमेंट हो रही है कि ऊपर से ही जाएंगे सब, क्योंकि वहां पे मिलिट्री एक्टिविटी ज्यादा होती है जो भी है. तो हाउ यू कैन असेस दिस विद द हेल्प ऑफ, हाउ यू कैन मैनेज दिस विद द हेल्प ऑफ व्हाट वी कैन से GIS. सेम थिंग विद द कोल, कितनी माइनिंग हो रही है, कितना आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, कितना आप कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो. एंड so this is how you can manage with the help of GIS. और सबसे बड़ी important natural gas, yes, this is the best example. अगर कोई CETP है, common effluent treatment plant है, या something STP है, sewage treatment plant है, वहां पे generally क्या होता है, मीथेन गैस तो emit होती है, somehow anaerobic decomposition होता ही है, somehow कितना भी आप कोशिश कर लो उसको एरोबिक डिकम्पोज करने के लिए, बट समहाउ कहीं ना कहीं. तो मीथेन गैस का ऑब्जर्वेशन कैंपस में ये विद द हेल्प ऑफ GIS कैन बी डन. और ये प्रैक्टिस में भी है. शायद मेरे हिसाब से जहां तक मुझे पता है अहमदाबाद के आसपास कोई CETP प्लांट है, वो अपना कितना उसके आसपास में नेचुरल गैस कंटेन है वो विद द हेल्प ऑफ GIS इज एनालाइजिंग एंड मॉनिटर इन डेली बेसिस, रोज होता है. So this is the one of the another application. Next, coming towards the next application, which is management of the natural disaster.
Yes. Natural disasters, droughts, events are the great threat to the environment that can be managed with the help of what we can say remote sensing and GIS. जैसे कि floods आ गए थे केदारनाथ में, something like that. So how they are managing that? How they are managing floods में फंसे हुए लोग कैसे मैनेज कर रहे थे? With the help of remote sensing. उस टाइम में ड्रोन चल रहे थे पूरे एरिया में कि कहाँ लोग फंसे हैं, कहाँ हेलीकॉप्टर जाएगा, कहाँ मिलिट्री एक्टिविटी होगी. Each and everything is managed with the help of remote sensing only. उसका प्लेटफॉर्म ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था, सैटेलाइट बेस्ड नहीं था, लो एल्टीट्यूड पे था, बट दैट इज वन ऑफ द अनदर एग्जांपल और अनदर एप्लीकेशन ऑफ द रिमोट सेंसिंग. यू कैन कंट्रोल इट, है ना, कि कहाँ कहाँ फ्लड के बीच में कहाँ कहाँ. बहुत अच्छा एग्जांपल है केदारनाथ का. अगर आप उसका ये देखो क्या कहते हैं उसकी वो कौन सा आता है एपिसोड जैसा आता है ना, क्या कहते हैं उसको, समरी जैसा बताते हैं, कुछ कुछ तो एक टाइटल होता है उस चीज का, एपिसोड लाइक होता है ना, वो जो भी आप है, अगर आप उसका देखो कोई वीडियो तो वहां पे बहुत डॉक्यूमेंट्री अच्छी बोलते मैम. हाँ डॉक्यूमेंट्री, यस यस यस, आई फॉरगेट दैट नेम ओनली. डॉक्यूमेंट्री अगर आप देखो केदारनाथ की फ्लड मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो बहुत अच्छे से बताया गया है ना, कि कहाँ कैसे मिलिट्री ने कैसे एक्टिव होके कितने अच्छी तरीके से मैनेज किया विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग. सेम थिंग हैपन इन ऑस्ट्रेलिया. जब फॉरेस्ट में फायर लगी तो कितना वहां पे आग लगी, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एवरीथिंग इज मैनेजेबल विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग. So this is one of the major advantage of the remote sensing as well as GIS. उस समय में जनरली क्योंकि फ्लड और ये जो जितना ये हो गया आपका फायर हो गई, ये जनरली एक लिमिटेड एरिया में होता है, तो वहां पे रिमोट सेंसिंग ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू द GIS. GIS सोल्यूशन बताएगा, बट क्या आपको इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए तो उस टाइम में इतना सारा प्रोसेसिंग वगैरह नहीं कर सकते. बट जी आपका रिमोट सेंसिंग उस टाइम में बहुत अच्छे से हैंडल करता है सारी चीजों को एज कम्पेयर टू द GIS. GIS इज ऑल्सो हेल्पिंग इट. जैसे कि ड्रॉट हो रहा है कि कहाँ कहाँ सूखा हो सकता है, प्रिडिक्शन भी करता है GIS कि इस साल इतनी बारिश हुई है तो इस एरिया में आपके ड्रॉट्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी. So this is one of the another application of the GIS. Now coming towards the next, that is a weather prediction. Remote sensing and GIS have proved to be perfect weather forecasting and general predictions. जनरली बता देता है GIS हो या रिमोट सेंसिंग हो, कहाँ से बादल आ रहे हैं, आपको हर एक सेकंड का पता चलता है कि जो मानसून की जो वेव्स है वो कितना पैसिफिक ओशन या हिंद सागर से ले लो कितने आगे आगे बढ़ रहे हैं और कब तक पहुंच जाएंगे आपके मतलब सिटी तक. ये इतना परफेक्ट प्रेडिक्शन होता है रिमोट सेंसिंग और GIS से कि आपका वेदर फोरकास्टिंग बेस्ट है. वेदर फोरकास्टिंग के लिए तो बेस्ट एप्लीकेशन है ना. और उस हिसाब से आप अपना जो भी आपकी जो भी इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर हो, जो भी सेक्टर है, उसको आप अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो. सो दिस इज वन अनदर एप्लीकेशन. नेक्स्ट coming toward the next application, that is analysis of land cover and land mapping. Yes, for the proper environmental management, it is necessary to monitor the changes in the land use and land cover patterns, है ना. तो रिमोट सेंसिंग और GIS सिस्टम आपका ये दोनों चीज करती है कि लैंड किस चीज से कवर की गई है उसका प्रॉपर मैपिंग करेगी. कंटूर मैप कहते हैं ना, लो लाइंग एरिया, हाई एल्टीट्यूड, प्रॉपरली डिफाइन करेगी. एंड डिपेंडिंग ऑन टू दैट ओनली यू कैन specify, you can manage your land as well as. Then ocean monitoring. अभी तो इतना स्कोप है ये ओशनोग्राफी में कि पूछना नहीं पड़ता है एनवायरमेंट से रिलेटेड. ओशन का क्लीन अप चल रहा है, जो कंट्री देखो वो ओशन के ऊपर मतलब इतना ज्यादा एक्टिव हो चुकी है कि कितना ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, कितना वहां पे कचरा है, कितना प्लास्टिक वेस्ट है. GIS से स्टडी करो जनरली जो ओशन से रिलेटेड जितने भी या कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है इवन उसमें भी, तो काफी ज्यादा भी स्कोप में है ये फील्ड अगर आप देखो तो ओशनोग्राफी वाली. और विद द हेल्प ऑफ GIS ओनली, तो GIS की मदद से आप ओशन का भी स्टडी कर सकते हैं. There is increased study, management and discovery for more information about the ocean and their waters and their floors as well. With the sensor, researchers can take images to the deep oceans without swimming or traveling underwater. Yes, this is the major advantage of this कि आपको अगर ओशन की स्टडी करना है तो उसके अंदर घुसना नहीं है, आपको बाहर से भी आप उसका विद द हेल्प ऑफ
perfect picturization, you can monitor the ocean as well as. So these are the another application. Next is the coastal monitoring. कोस्टल आपका जो भी सी शोर एरिया है ना, उसका एनवायरमेंट कैसा है, विद द हेल्प ऑफ जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग यू कैन मॉनिटर इट. उसको GIS helps to carry out the development planning process and effective management of the coastal zone. Yes, low tide, high tide, ये पहले ही GIS बता देता है आपको, और कितना हाई टाइड जाएगा, कितनी दूर तक जाएगा, तो कहाँ से आपको डेवलपमेंट करनी है, कहाँ से नहीं करनी है, कितना कितना आपको हाई एल्टीट्यूड में पानी कितना ऊपर जाएगा, हाई टाइड में, सॉरी, हाई टाइड में कितना पानी ऊपर जाएगा, उस हिसाब से आपको क्या करना है उसका क्या कहते हैं हम लोग उसे, कितना ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू करना है पानी से, है ना, कितने लेवल के ऊपर हमें कंस्ट्रक्शन शुरू करना है, एक्चुअल में डेवलपमेंट करना है. सो दैट कैन बी एनालाइज विद द हेल्प ऑफ GIS ओनली. सो दिस इज अनदर एप्लीकेशन. GIS के बहुत सुंदर एप्लीकेशंस है. कोर्स करना बहुत इजी है, आप कुछ ज्यादा इतना मुश्किल नहीं है. आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं GIS के बेसिस पे, पर GIS का सर्टिफिकेट रहता है ना, तो आपको काफी ज्यादा स्कोप मिल जाता है. नेक्स्ट इज सॉइल मॉइस्चर डेटा. यस, जनरली आफ्टर मानसून बहुत ज्यादा जरूरी रहता है एग्रीकल्चर के लिए. दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट advantage of the GIS and what we can say remote sensing. Topsoil layer is vital for the agriculture and environmental growth. The soil is important in forecasting weather and natural disaster for ecological management. See, खेती के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपकी टॉप सॉइल में मॉइस्चर कितना है. एग्जैक्ट GIS से अगर आप देखो ना, सॉइल की कंडीशन टेक्सचर देखकर GIS बता देते हैं कि कितना मॉइस्चर कंटेंट है. और ऐसा भी नहीं कि बहुत रेंज में बता रहा है, जैसे कि 20 से 100% तक रहेगा. नो, इट कैन स्पेसिफाई 20 to 21 और मैक्सिमम 22% ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट इज प्रेजेंट इन द टॉप सॉइल लेयर. So that much of specification is given by the GIS. That's why it is important, very important for the agriculture. नहीं तो किसानों को अब तो किसान काफी ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं कि जाते हैं और देखते हैं कि हाँ यहाँ पे अभी ये फसल ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन टू द मॉइस्चर कंटेंट. बट अगर बहुत बड़ी जिसकी लैंड है, बहुत ज्यादा ओन करता है, उसके लिए पॉसिबल नहीं होता, तो विद द हेल्प ऑफ GIS as well and as well as government can suggest, yes, this year you can take this crop field or something like that. गवर्नमेंट की काफी ज्यादा स्कीम भी चलती है इसको लेकर, है ना. A significant area of research currently taking place in a remote sensing field is measure the soil moisture, which entails measuring on a top 5 centimeter earth surface. NASA soil moisture active passive SMAPV mission uses satellite to retrieve data about the soil moisture after 2 to 3 days of the rainfall. Okay, तो जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है वो तो GIS का यूज करते हैं टॉप सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए, है ना. नेक्स्ट, वेजिटेशन मॉनिटरिंग. आपके यहाँ पर कितना ग्रीनरी है, वो जो वेजिटेशन इंडेक्स है, हाउ यू कैन यूज इट विद द हेल्प ऑफ GIS. द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंडेक्स दैट एनालाइज यूज इन वेजिटेशन मॉनिटरिंग इज NDVI, है ना, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स. रिमोट सेंसर आर यूज्ड फॉर द NVDI टू मेजर डिफरेंस between near infrared and red light reflect and absorbed by the plant. The data observed is used in agriculture, farming and forest management. Generally vegetation जो आपका greenery part है वो कितना है, तो with the help of remote sensing आप यूज कर सकते हो, आप निकाल सकते हो. एंड उससे हम लोग कैसे मेजर करते हैं, वेजिटेशन इंडेक्स से हम लोग मेजर करते हैं, और वो हेल्पफुल रहता है एग्रीकल्चर, फार्मिंग एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट. जो गवर्नमेंट है दैट कैन इजीली एनालाइज विद द हेल्प ऑफ वेजिटेशन मॉनिटरिंग कि कितना इस साल हमारा जो है गेहूं हो सकता है, या जो भी धान है वो हो सकती है, जो भी पल्सेस है वो कितने हो सकते हैं, बेस्ड ऑन टू द वेजिटेशन डेटा ओनली. एंड इट कैन प्रेडिक्ट द रेट फॉर दैट कि हाँ इतना हम लोग क्रॉप का रेट रख सकते हैं. सपोज आपकी गेहूं है, वीट है, GIS इंफॉर्मेशन निकालता है और गवर्नमेंट को पता चलता है, चलो आज मतलब इस सीजन में पूरे इंडिया में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10 लाख टन गेहूं होगी, तो चलो फिर इतना इतना रेट रखेंगे पर केजी. गवर्नमेंट 40 to 30, 40 तो नहीं, 20 to 25 पर केजी
रेट रखती है जो भी आपका गेहूं का है ना. सो लाइक दैट इट कैन मैनेजेबल and easy to manage for the government as well as other farmers as well as. So this is how the vegetation monitoring can help, and this is one of the application. Now coming to the next, that is the urban planning. Urban planning involves designing, financing and implementation strategies that can affect the social impact of the urban environment. Okay. उसमें सभी चीजें आके आपका डिजाइनिंग, फाइनेंसिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग, और इमेज फ्रॉम द सेंसर आर यूजफुल इन द प्लानिंग प्रोसेस. जो भी इमेज आपका रिमोट सेंसिंग ले रहा है या जीआईएस, उससे उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं. नाउ एनवायरमेंटल स्टडीज एंड हैबिटेट कंजर्वेशन. यस, remote sensing used to detect the cause of deforestation, volcanoes, pollution, floods, and other natural hazards. And this is important information for this study is to put into the practice to prevent more danger in the future. Sensors are also used in recording in all activities in a given area to maintain the safety of habitat. अगर आपका डिफॉरेस्टेशन ज्यादा हो रहा है तो वहां के नेचुरल हैबिटेट जो है वो आपको कम से कम ही देखने के लिए मिलेंगे, है ना. कई सारी स्पीसीज एंडेंजर में आ जाएंगी. तो ये बहुत जरूरी है. ये एनवायरमेंटल स्टडी करने के लिए आपको रिमोट सेंसर या जीआईएस ही लेना पड़ेगा, सो दैट यू कैन इजीली analyze the natural habitat and how many ways are there to conserve that habitat. Okay, this one of the application of environmental study from GIS and remote sensing can be useful for the conservation of each and everything, either it is forest, plant species, animal species, or anything else. Now researching tools. Yes, sorry. तो what is this remote sensing और researching tool? Yes, अगर आपको कोई रिसर्च करना है किसी भी चीज के, किसी भी फील्ड से लेकर, तो आप इस चीज का हेल्प ले सकते हो. जीआईएस और रिमोट सेंसिंग, काफी ज्यादा रिसर्चेस तो हो ही रही हैं दोनों चीज को लेकर, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस को लेकर, है ना. तो इस तरीके से ये these are the application of GIS and remote sensing. Here we are completing your unit 5 का पूरा आपका हो चुका है. अब लास्ट टॉपिक बचा है एनवायरमेंटल डिजाइन. ओके, और वो मैं कल खत्म कर ही दूंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है. कल मैं ये पूरा आपका लगभग यूनिट 6 पूरा खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक सॉरी यूनिट 5 आपका पूरा खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट वीक से मैं आपको यूनिट नंबर 6 खत्म करने की कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीक. फिर देखते हैं टाइम जैसे मिलता है उस हिसाब से फिर कुछ एक्टिविटी प्लान करते हैं. और बिफोर क्लोजिंग द सेमिस्टर आई वांट अ फीडबैक फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो ऑनलाइन रह के देख रहे हैं, जो घर बैठे वीडियो देख रहे हैं, या जो कोई भी है. तो मैं एक फीडबैक फॉर्म निकालूंगी, ठीक है. आई मेक इट इन गूगल फॉर्म ओनली, and I want a feedback from you ki how was my teaching and something like that. There are several questions you have to just answer in words or something like in number or like that only. I'll give the details related to the answer in the question only. Okay, so you have to give me the feedback. I'll put it on the WhatsApp group, and meantime you can give me the feedback before closing of the semester, before appearing the exam. और मैं बोल दूंगी कि इन लोगों को एग्जाम नहीं देने देने जो लोग फीडबैक नहीं दे रहे, जो घर पे बैठ के भी, जो अभी ऑनलाइन है उनके लिए भी, और जो बाद में लेक्चर देखेंगे उनके लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि आप मुझे फीडबैक दें. ओके, इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी ओनली, एंड यस कि मुझे कितना इम्प्रूव करना है नेक्स्ट सेमेस्टर में. That's why I'm asking for the feedback from you people as well. और उसमें एक क्वेश्चन मैं कुछ आपके बारे में भी डालूंगी कि what are you getting from, yes, thank you, what did you learn from this subject and how you will going to apply this in your company. तो कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, अपने अगर जो भी आपको उसमें टाइप करना है वो कर सकते हैं, है ना. That's it from my side today. So we'll meet tomorrow only with the last topic of unit number 5. Okay, and tomorrow I'll complete unit number 5. Any difficulty in up till now? No, okay ma'am. then okay then Thank you. okay then thank you. See you.
Bye.